मैं कहना चाहूंगी तृणमूल कांग्रेस के ओर से कि हम लोग लगातार एसआईआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर। हम कह रहे हैं कि इस तरह से जो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, नागरिक से, आम नागरिक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, गणतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके विरुद्ध में हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर। हम ये भी कहना चाहूंगी कि बांग्ला भाषी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्ला भाषी को जिस तरह से पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, डिटेंशन कैंप में ले जा रहे हैं, ये बंगाल को अपमानित कर रहे हैं, बंगाल का अपमान है, घोर अन्याय हो रहा है बांग्ला भाषी के ऊपर। इसका प्रतिवाद हम कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मंडे को हम मार्च करेंगे चुनाव आयोग तक, ये हमारा प्रतिवाद प्रकाश करने के लिए। आई जस्ट थैंक यू ऑल। We all have decided to meet you today to take the message to the people what is going on in the parliament. The parliament is not functioning for the whole of the sessions almost except the Pahalgam debate, and the ruling party is putting the blame upon the opposition parties that we are not allowing the house to function and disrupting the proceedings. We want to make it clear, having full trust on this temple of democracy, the parliament, the institution where it is meant for debate. We are insisting for a debate on SIR, a very serious issue, special intensive revision of electoral polls. On that basis, the election commission, by way of revising the electoral rolls, they are disqualifying many people of having their voting right. In a country like India, the largest democracy in the world, fair and free elections have to be ensured. Every citizen has to choose his choice of government. For that, the basic thing is voting right. But asking for some documents which are not necessary, asking for to prove the citizenship is not within the boundaries of the election commission. It is only with the Home Ministry. And when we ask for a debate in the parliament to discuss this very serious issue, yesterday, today in Bihar, tomorrow Tamil Nadu, West Bengal and all other parts of India, especially the opposition parties, voters will be deprived of voting. So we see a very big thing that is going on behind. When we want to discuss it, the ruling party is not giving time, they are not coming forward. Why it is? Because we again develop an opinion that they say that it is within the purview of the election commission, but when they are not prepared for a debate, we have to think that they are also for it. So we have a very strong opinion that the government should come forward, either in the BAC or a meeting of all the parties should allot time to discuss the SIR. Only for that reason, because the message should go to the people by way of this press conference. We are not disrupting the house, we are fighting for the rights of the people, their right to exercise their franchise, their right to elect a government of their choice. They have to vote in the elections. If that is not given, what is the big idea of being a citizen in this country somewhere as nothing with them? So this is the stance of the opposition parties, and we are all together insisting upon that. So kindly believe that we are not disrupting, we are not undemocratic, we are not behaving in a manner unruly as we are being depicted. We are fighting for the rights and for a rightful demand, the debate in the parliament. So with this, kindly the people have to support the opposition party stance that we are for voting right to every citizen, not showing some flimsy reasons and depriving of their voting rights. Thank you, Shivaji. Now I request रखता हूं, संसद लोकतंत्र में एक ऐसा स्पेस है जहां लोगों की बात होती है। लोग विलुप्त किए जा रहे हैं। मेरे सारे साथी बहुत मासूम हैं, अभी भी इसे वोट की चोरी बता रहे हैं। ये डकैती है, दिन दहाड़े की डकैती है। और दिन दहाड़े की डकैती का निशाना कौन है? वो लोग जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। मैं सिर्फ एक वानगी देकर के बात खत्म करूंगा। कहा गया कि सब जुडिस मैटर, कमाल है भाई। उसी जुडिशियरी ने दोनों ही दिन
चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इंक्लूजन, यू मस्ट इंक्लूड आधार कार्ड, ईपीआईसी नंबर एंड राशन कार्ड. Did the election commission listen to it? He is brazenly acting on behalf of somebody who doesn't sit in election commission but decides things how election commission should function. इसलिए मैं आखिरी बात कहूंगा, बाकी सारी चीजें कह चुके हैं. अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है. कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा, आपके कैमरे और माइक का भी कोई मतलब नहीं होगा. शुक्रिया. दीदी, आप जानते हो कि लोकसभा के चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में जो हुआ वो आज भी सभी को अचंभित करता है. कहां से आए ये वोट? न इलेक्शन कमीशन आज भी सीसीटीवी देने की बात करती है या 5 बजे के बाद में कैसे वोटिंग हुआ उसकी जानकारी नहीं देती. यह हमला लोकतंत्र पर है, जनतंत्र पर है. आज हम लोग सब इकट्ठे आए हैं, सिर्फ बंगाल और बिहार के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए इकट्ठा है. आज ये 2 राज्यों से हो रहा है, कल को पूरे राज्यों से होगा. किसी अनपढ़ हमारी बहन से पूछा जाता है, आपकी मां की जन्मदिन की सर्टिफिकेट दे दो, जन्म की. ये इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, आप लोग ही बता रहे हो. अनेकों चैनलों पे दिख रहा है. तो इसलिए हमने ये जो स्पेशल रिवीजन जो कर रही है उसके बाद इसके लिए संसद ने चर्चा की मांग की. अब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा ने, हम कहां कहते हैं, हम तो कहते हैं रिफॉर्म के बारे में चर्चा हो जाए, नियमों के बारे में चर्चा हो जाए. फिर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है. और इसलिए आज जो कुछ हम विपक्ष के नाते यहाँ जो सदन नहीं चल रहा है वो ये नहीं कि हम काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं. पहलगाम के बारे में भी उन्होंने 2 बीएससी मीटिंग में भी एजेंडा पे लिखित नहीं दिया. बाद में विपक्ष ने जब आग्रह किया तब कहे हम चर्चा लेंगे, तारीख नहीं बताई थी. फिर जबरदस्त आग्रह करने के बाद पहलगाम की चर्चा हुई. हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए इकट्ठे आए हैं और जनता का हक मांगने और जताने के लिए इकट्ठे आए हैं. इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है. धन्यवाद. शुक्रिया. जो मसला चल रहा है, जिस पर हम रोजाना मांग करते हैं और सरकार मानती नहीं है, मजबूरन सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है. ये सही मायनों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को आघात पहुंचाने का काम सरकार कर रही है. अगर लोगों के वोट काट दिए जाएंगे तो आज तो वोट काट रहे हैं, कल को उनकी नागरिकता पर भी प्रश्न चिन्ह सरकार लगाएगी और उल्टे सीधे काम जो आशंका है वो ये सरकार करेगी. इसलिए आज इसका मुकाबला करना जरूरी है. और मैं पत्रकार बंधुओं से और पत्रकारिता जगत के सभी कार्यकर्ताओं से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में पत्रकारों को भी और दूसरे वर्गों के साथ, समुदाय के साथ इसमें आगे आना चाहिए. अगर लोकतंत्र नष्ट होता है तो जो बड़े लोग हैं वो तो किसी भी व्यवस्था में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा शिकार देश के पिछड़े, दलित, उपेक्षित, वंचित समुदायों के लोग ही होते हैं. इसलिए यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि लोकतंत्र बचेगा तभी कमजोर तबकों की आवाज भी बचेगी. और उसको बचाने के लिए राजनीतिक दल, पत्रकार जगत के लोग और सभी समुदायों के सभी वर्गों के लोगों को आगे आना चाहिए. हम विपक्ष के साथ पूरे तरीके से एकजुट हैं, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि अंदर क्या होता है और डिस्कशन और डिबेट क्यों नहीं हो रहा है. वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन का डिमांड कर रही है. और वो डिस्कशन किस पर है? वो डिस्कशन है जो इलेक्टोरल रोल पे इंटेंसिवली ये जो रिवीजन कर रहे हैं उस पर. अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है. 2-3 छोटे छोटे मेरे प्रश्न है, अगर सरकार इन प्रश्नों का उत्तर दे दे तो स्पष्ट हो जाएगा. और इसके लिए डिबेट की जरूरत है पार्लियामेंट में. प्रश्न ये है कि भाई थोड़े दिन पहले बिहार में
इलेक्शन कमीशन ने एक रिवीजन किया था, काफी रिवीजन किया हुआ, उसमें काफी सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस के बाद एसआईआर को फिर से लाने की क्या जरूरत पड़ी? आपके पास क्या ऐसे इनपुट आए जिसके बाद आपने एसआईआर इनिशिएट किया? तो एसआईआर के इनिशिएशन का क्या बेसिस था? प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो इंटेंसिव रिवीजन आप चला रहे हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड है, ऐसा आप कह रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तीसरा प्रश्न ये है कि जो टाइमलाइन आपने सेट किया है और जो लोग इस पे लगे हुए हैं, तो क्या यह संभव है कि इतने कम समय पे जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये सारा रिवाइज कर लेंगे, वो संभव है? ये संभव ही नहीं है, ये संभव प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है कि इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन करके पूरे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसमें दुविधा नहीं है। और ये बात हम आज से नहीं, हम दिल्ली के चुनाव से पहले से चिल्ला रहे हैं। हम पहले से बता रहे थे कैसे आप किसी भी, मैं आप सबको चुनौती देता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल उठाइए आप, और वहां पे जिस तरीके से एक एक घर में 20-20 वोट बन रहे हैं, कहीं पे भी किसी के भी वोट काट दिए जा रहे हैं, ये बहुत स्टार्टलिंग है। और इस देश का आधार प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का आधार ट्रांसपेरेंट चुनाव है। और अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव को अगर आप खत्म कर दोगे तो फिर ये बचेगा नहीं, फिर ये सारा कोई टाइम पास होकर रह जाएगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, और ये इतना गंभीर विषय है कि पूरे देश की प्रजातंत्र ही खतरे में दिखाई दे रही है। हम पूरे विपक्ष के साथ हैं इस पर, और सरकार से डिमांड करते हैं कि तुरंत इस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन की जाए। शुक्रिया संदीप जी। मैं भी और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।